Yeah. Should I start? Okay. Yeah. Okay. So today we will study about different reaction mechanisms. So they are basically 4 types. First is substitution reaction, then addition, then elimination, and last rearrangement reactions. Okay. So substitution reaction could be in aromatic compounds, could be in aliphatic compounds. Anshul, can you tell me what are aromatic compounds? The one that follow Huckel's rule, the one with cocaine and 4 Yes. has 2 electrons. Yes, the one which have a cyclic. They are cyclic in nature, right? Yeah. So this substitution could be of nucleophile or electrophiles. Anshul, what are nucleophiles? What are? Nucleophiles? They are electron rich, like nucleus loving. Yes. And electrophiles are? Electron loving, electron deficient. Yes. So the substitution could be by nucleophile or by electrophiles. So if nucleophile is doing the substitution, then it is again of 2 type, SN1 and SN2. Okay. And electrophile substitution reactions we mainly study in aromatics. In aromatics compounds, हम electrophilic substitution को पढ़ते हैं. Okay. तो जो nucleophile substitute करेगा उसको हम कहेंगे nucleophilic substitution reactions. And if electrophile is substituting, then we will call it as electrophilic substitution reaction. So addition reaction, again addition reaction ही electrophile addition हो सकता है. Okay, if and or nucleophilic. So जर्नल जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, जो रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, in which we have a substrate, okay, then a reagent along with a solvent, then there is a formation of an intermediate. Okay, this intermediate then gives us a product. Okay, so substrate कुछ भी हो सकता है, we know this, saturated, unsaturated, carbonyls or anything, and these reagent could be electrophiles. This is how we denote electrophiles, with positive. Okay, nucleophile with this negative. Okay, so this reagent could be electrophile or nucleophile. Okay, this solvent could be polar or non-polar. Okay, and this intermediate could be carbocation, carboanion, radical, etc. Okay, so this is the journal reaction mechanism. So we know what are electrophiles and what are nucleophiles. अब हम if we talk about solvents, so solvents are of 2 type. जो भी हम solvent use करेंगे, those are of 2 type. One is non-polar solvents, in which there is no difference in electronegativity. Okay, so no electronegative difference. For example, only hydrocarbons are present. ऐसे solvents जिनमें कोई electronegativity difference नहीं है. For example, benzene, hexane. Hexane is a hydrocarbon. So these are 2 non-polar solvent. Then we have polar solvent in which electronegativity difference is there. These are also of 2 type, protic or aprotic. Okay, so in protic, hydrogen is directly attached to a electronegative group. For example, OH. Here hydrogen is directly attached to oxygen. Okay, so these type of solvents are protic, and aprotic are those in which this bond is not present. For example, this hydrogen is attached to carbon, but this carbon is attached to the oxygen. There is no oxygen hydrogen bond or any electronegative element. Are you getting stuck somewhere because you are giving expressions like you are confused? I'm asking you, are you getting stuck somewhere because you are giving expressions like you are confused? No, I'm just mute हूँ तो शायद से इसलिए. अच्छा, वैसे है तो थोड़ा टफ. सुबह 6:30 बजे क्लास होती है.
चलो, हार्ड वर्क विल पे ऑफ. Mhm. So is it clear to you? Poloprotic and Mhm. aprotic, जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्टली अटैच ना हो हाइड्रोजन से. ओके, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे तो इट विल बी क्लियर टू यू. So for poloprotic we have alcohols, carboxylic. For aprotic we have this, in which hydrogen is not directly attached to any electronegative group. अंशुल, यू आई गेस आपको थोड़ा अवेयर होगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक अमाइंस एंड हाँ. अल्कोहल. ओके, सो वो थोड़ा बताने की जरूरत है या फिर इट विल बी फाइन? ओके, पोलर. हो गया. सो नाउ यू हैव टू टेल कि इनमें से जो सॉल्वेंट दिए हैं वो पोलर है, प्रोटिक है, नॉन पोलर है. अगर पोलर है तो प्रोटिक है या एप्रोटिक है. थोड़ा ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल H2O, सो इट इज पोलर and hydrogen is directly attached to electronegative, more electronegative group, so it is polar protic. So for ammonia, what do you think क्या होगा? Hmm. Ammonia is polar. Yes, polar. Is it protic or aprotic? It's protic. Yes. And this? It's polar again. Yeah, polar. Um, it's a protic. What? Protic or aprotic? Protic. It's Why no. hydrogen? See, carbon और hydrogen में ज्यादा फर्क नहीं होता electronegativity में. Okay, that's why I told you that hexane and benzenes are non-polar. Hmm. Okay, so this will be also aprotic. Then we call it as DMF. ये बहुत ज्यादा यूज होता है इन रिएक्शंस. So it is again polar and aprotic. This CH2Cl, it is polar. It will be protic or non-aprotic? Protic. Huh? Protic. Protic. हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली अटैच है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से, कार्बन से नहीं. कार्बन इज लाइक सेम ही होता है. ओके, अगर Cl से डायरेक्टली अटैच होता ना, फॉर एग्जांपल HCl होता, देन दैट विल बी पोलर प्रोटिक. बट यहाँ पे पहले वो कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन. कार्बन आगे जिससे भी अटैच हो उसको नहीं देखना है. इन दिस केस सॉल्वेंट्स में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तब कार्बन आगे चाहे किसी से भी अटैच हो, मतलब आप यू माइट बी गेटिंग कंफ्यूज कि Cl है तो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है ना. वो नहीं देखना है. ओके, हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है ना, वो आगे चाहे किसी से भी अटैच हो, हमें मतलब नहीं है. ओके, सो इसमें अपने इसको एप्रोटिक ही लेंगे. Hmm. ओके, सो CCl4. Non-polar. यस, नॉन पोलर. सो इज इट क्लियर कैसे एप्रोटिक हमने बोला? Mm-hmm. तो सॉल्वेंट्स हो गए. नाउ वी विल स्टार्ट विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ओके, दैट टू इन एलिफेटिक्स. ओके, सो एलिफेटिक में हम सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करा के देखेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ओके, सो हमने देखा दिस कुड बी SN1 एंड SN2. ओके, सो SN1 रिएक्शंस वी कॉल इट एज, यहां से शुरू करेंगे. 1 means unimolecular, N means nucleophilic,
S means substitution reactions. Okay. तो जनरली इसका जनरल मैकेनिज्म SN1 और SN2 में वो सब्स्टिट्यूशन ही रहा है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स. जो डिफरेंस इन दोनों में है इट इज बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म. ओके. देयर इज ओनली डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 इज मैकेनिज्म. मैकेनिज्म में डिफरेंस आ रहा है. So in general reaction, general substitution reaction, in this we have a substrate, a reagent along with a solvent. This will substitute X in this and make a new product. So mechanism. Actually in SN1, mechanism is of two-step. Okay. So in first step what happens? This is the leaving group X. ये क्या करता है? X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स लेगा. Then it will leave the substrate. So in first step, the leaving group will leave, and then we will left with a carbon cation. This is cation, and this is leaving group. Okay, so ये leave कर गया. So this is the first step, and this step is very much slow. Okay, so this step is slow. In second step, what happens? जो ये कार्बोकैटायन बना है, nucleophile will attack on this carbocation, and a new product will form. Okay, so this is of two step. Second step is fast. In first step, leaving group will leave. सबसे पहले वो निकल जाएगा. तो what is hybridization of our substrate first? Hybridization of substrate इसका sp3. yes sp3 and cation का इसका भी एक बॉन्ड टूट गया तो isn't it sp2 now? हाँ. So what is geometry of sp3? Tetrahedral and of sp2 trigonal planar. So initially क्या था? 3 बॉन्ड प्लेन में थे, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड प्लेन में थे, एक बॉन्ड ऊपर था, एक बॉन्ड नीचे था. ओके, सो लीविंग ग्रुप चला गया. उसकी वजह से क्या हुआ? जो बाकी के 3 बॉन्ड थे तीनों प्लेन में आ गए ना. ठीक है, अब ये प्लेन में है. सो अगर ये प्लेन में है तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है. है ना? सो आइदर इट कैन अटैक फ्रॉम अबव और बिलो. दोनों की पॉसिबिलिटी जो है वो क्या है? 50-50%. Okay, so we get a racemic mixture in SN1 reaction. Okay. So we have discussed that first step is slow. तो अगर हम इसकी काइनेटिक की बात करें, काइनेटिक्स की रेट की बात करें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सबस्ट्रेट. अच्छा अंशु, सिर्फ सबस्ट्रेट के ही क्यों है रेट, न्यूक्लियोफाइल के क्यों नहीं है? Because वो slow step है. Slow step only- determining. Yes, rate determining step. Raised to the power 1. Okay, so order will be 1 and it is unimolecular reaction and we get a racemic mixture. इसका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है in which first we have our substrate. ये substrate में एक transition state आई in which Rx X is leaving the group and then we had a intermediate in which X has left the substrate and now this substrate is getting attacked by a nucleophile. And we are getting a new product. Okay? Yeah. So stereochemistry of the product is clear to you? That first it was tetrahedral, ऊपर नीचे 2 बॉन्ड थे, प्लेनर बन गया, तीनों बॉन्ड प्लेन में आ गए. So now attack could be from above side or below.
Okay, so we get a racemic mixture in this. So racemic mixture है, then it will be optically inactive. Yeah. Okay, so the factor affecting the SN1 reaction. First is structure of substrate. So if you like, you can see that first is the formation of cation. So ज्यादा stable cation बनेगा तो ज्यादा reaction का rate बढ़ेगा. हाँ. Okay, तो rate of reaction is directly proportional to the stability of cation. और ये भी stability में tertiary, secondary and primary. तो जो substrate है in which if there is possibility कि after the removal of leaving group हमारे पास third degree कार्बोकैटायन बनेगा तो उसका rate of reaction सबसे ज्यादा हो जाएगा. Okay, then second degree and at last primary. Second, weak and neutral nucleophiles favor SN1 reaction. जो weak और neutral होंगे nucleophiles वो favor करेंगे. For example, ये वाला alcohol neutral है and also weak है. Effect of solvent. In this case, we use polar protect solvents in SN1 Yeah. reaction. Okay. Now we will discuss about SN2 reactions. Before that, we should discuss some substrate जो react मतलब थोड़ा clear होगा कि कौन सा substrate देगा SN1 reaction, कौन सा नहीं देगा. तो for example, ये है, ये substrate है. तो if leaving group leaves, then we will get tertiary substrate. तो ये अच्छे से SN1 mechanism दिखाएगा. Also, if we have these, then these will be their corresponding carbocations. So इनमें कौन सा इफेक्ट आ रहा है? Resonance effect. So रेजोनेंस इफेक्ट इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है. तो ये वाले भी SN1 रिएक्शंस अच्छे से दिखाएंगे. एंड इफ वी हैव दिस, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन ये होगा. तो ये SN1 रिएक्शन नहीं दिखाएगा. व्हाई? बिकॉज इट्स हाईली अनस्टेबल. हाँ. ठीक है. ऑल्सो हमारे पास एक नॉर्बोरेन सिस्टम होता है लाइक दिस. एंड इफ इसके वी कॉल इट एज ब्रिज हेड. ये वाला जो है, ये कार्बन एंड दिस कार्बन, वी कॉल इट एज ब्रिज हेड. और अगर इस पे एक्स ग्रुप है, लीविंग ग्रुप थ्रू है, सो इन दिस केस इन SN2 रिएक्शन इट इज ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन. ओके, एक ही स्टेप होता है इसके अंदर, 2 स्टेप नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर हैविंग अ सबस्ट्रेट लाइक दिस और जो लीविंग ग्रुप है ये अबव है. इन टेट्राहेड्रल 2 बॉन्ड ऐसे होते हैं जो एक अबव होता है, एक बिलो होता है. तो लेट्स से कि एक अबव है, उसके ऊपर एक्स ग्रुप है जो कि लिविंग ग्रुप है. तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अपोजिट अटैक करेगा. अगर जो एक्स ग्रुप अबव है तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा. ओके, पीछे से अटैक करेगा और ये निकल जाएगा और खुद वहां जाके अटैच हो जाएगा. और ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये सिमिल्टेनियसली होती है. यहाँ से अटैक किया, पीछे से अटैक करेगा, वो निकल जाएगा सीधा ही. सो इट हैज अ ट्रांजिशन स्टेट, नॉट एन इंटरमीडिएट. ये ध्यान रखना. Do you know what difference between transition state and intermediate? Intermediate is like something that's formed. हाँ. So like sometimes it turns into just like a temporary state. Yes. So ये transition state है. Nucleophile is also having negative charge and leaving group is also having negative charge. Okay. So this is the transition state of SN2 reaction. So ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन क्वेश्चन आपको अलग अलग ट्रांजिशन स्टेट्स दे दिया जाएगा और जिसपे चार्जेस जो है वो डिफरेंट कर दिए जाएंगे. एक न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव, एक लिविंग ग्रुप पे पॉजिटिव. यू शुड नो कि ट्रांजिशन स्टेट में दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है. ओके, देन वी विल गेट अ प्रोडक्ट. So if we talk about stereochemistry, so this is inversion. Anshul, do you know what is inversion, retention, and racemic mixture? Yeah. Okay, so this is inversion.
energy profile diagram. In this, first we are having substrate, then a transition state, and then a product. Simple है इसका बिल्कुल, because it does not involve any intermediate. So now first of all, it is concerted process. That means it does not involve any formation of intermediate. Second, a rate is directly proportional to the substrate as well as nucleophile. So it is second order reaction. Okay. And there is no intermediate and inversion of stereochemistry. So in this, जो substrate होगा अंशुल, आपने ये पढ़ा है पहले? पढ़ा है पहले, मतलब 11th में। हाँ, मतलब इज इट क्लियर टू यू कि, या फिर मतलब मैं यूँ पूछ रही थी कि आता है या फिर ज्यादा मतलब बताऊं, क्योंकि अभी तो थोड़ा ऐसे बता रही हूँ ऊपर ऊपर से कि ऐसे होता है, थोड़ा ऐसे बता चाहिए आपको कि बहुत अच्छे से कि पूरा एक एक डिटेल बताऊं. इफ इट इज योर वीक, मतलब वीक सेक्शन है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? ओके ओके, तो अकॉर्डिंगली मैं पढ़ा था. कुछ कुछ चीजें ऐसे होती हैं, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो मेनी थिंग, व्हाट आर लिविंग ग्रुप्स, उनमें भी क्या क्या चीजें होती हैं. तो अगर वो सब अगर चाहिए आपको तो वी कैन डू. ओके, तो इसमें जो सबस्ट्रेट होता है, फर्स्ट इन SN1 वी सेड दैट जो सबस्ट्रेट होगा वो डिपेंड करेगा ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. ओके, सो इन दिस केस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि कार्बोकैटायन बन ही नहीं रहा है. तो अपोजिट होता है. इन SN1 3 डिग्री फर्स्ट, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन अ मिथाइल ग्रुप. इसमें अपोजिट होता है. वी आर हैविंग अ मिथाइल ग्रुप, सबसे ज्यादा देगा, then first degree, then second degree, then third degree. Okay, and in the case of SN1, solvent was polar protic. In this case, solvent will be polar aprotic. Okay, in the case of SN1, nucleophile क्या था, weak होना चाहिए था, because actually weak और strong में अगर आप सोचोगे तो in SN1 reaction ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल निकल गया था, एक कार्बोकैटायन बना था जो कि बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था. तो उसके ऊपर अगर वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा जिसके पास थोड़े से इलेक्ट्रॉन होंगे, थोड़ा सा वीक होगा, वो भी जाके आराम से अटैक कर सकता है. ओके, बट इन दिस केस जो सबस्ट्रेट है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है. ओके, उसमें सिर्फ एक पोलैरिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बट इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो लीविंग ग्रुप को लीव कराने के लिए एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा हमें इन दिस केस, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग हो, सीधी से आके ना यहाँ से सीधा अटैक करे और ऊपर से निकाल ही दे उसको, लीविंग ग्रुप को. तो इन दिस केस बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और मेनली हम प्रेफर करते हैं कि नेगेटिवली चार्ज हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल OH माइनस, OR माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं. ओके, सो अगर आपको कोई सबस्ट्रेट दिया है, जैसे थर्ड डिग्री सबस्ट्रेट है, टर्शरी है, बन रहा है अगर कार्बोकैटायन, तो बिना कुछ सोचे समझे यू विल से SN1 रिएक्शन होगा. ओके, प्राइमरी दिया है तो बिना कुछ सोचे समझे यू विल से SN2 होगा, क्योंकि देयर विल बी एक कंफ्यूजन. अगर कोई सबस्ट्रेट दिया है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि SN1 होगा या SN2 होगा या क्या होगा. दिस इज द वे हाउ यू विल डिफरेंशिएट. और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है सेकेंडरी वाले में, क्योंकि सेकेंडरी दोनों में ही बीच में आता है. इसमें भी वो बीच में है, SN1 में भी और SN2 में भी. तो इन दैट केस आप देखोगे सॉल्वेंट क्या है, पोलर प्रोटिक दिया हुआ है रिएक्शन में या पोलर एप्रोटिक दिया हुआ है. ओके, सो अकॉर्डिंगली यू विल चूज SN1 होगा या SN2 होगा. अगर वो भी नहीं है, उससे भी नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप न्यूक्लियोफाइल देखना कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा दिया है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है. ओके, राइट. असाइल ग्रुप, दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल्स. नाउ इसके अंदर कुछ नहीं है, इसमें जस्ट हम एक एरोमेटिक रिंग लेंगे एंड उसके ऊपर इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड कराएंगे एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली उनका एक नाम हो जाएगा. NO2 ऐड करवा दिया तो नाइट्रेशन हो गया, SO3 पॉजिटिव ऐड करवा दिया तो सल्फोनेशन हो गया, हेलोजन करवा दिया तो हेलोजिनेशन हो गया. ओके, सो एक नॉर्मल जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है इसमें तो कुछ नहीं होता. सो इट इज इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ओके, एंड बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच. ओके, सो इसमें जो ये डबल बॉन्ड है इट विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल एंड वी विल गेट दिस. ओके, नाउ दिस हाइड्रोजन विल लीव द ग्रुप, जाएगा तो वो प्रोटॉन है, माइनस चार्ज छोड़ जाएगा, ये माइनस चार्ज यहाँ डीलोकलाइज करेगा एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट. दिस इज हाउ
ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ इसमें ऐड होंगे। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है? मैकेनिज्म समझ में आया, जनरल मैकेनिज्म? हाँ हाँ ओके, ये एक्चुअली कैसे होता है देखो, दिस इज डबल बॉन्ड। ओके, सो अगर इसको हम तोड़ेंगे, हेटेरोलिटिक क्लीवेज करवाएंगे अगर हम इसकी, तो एक जगह नेगेटिव आएगा, एक जगह पॉजिटिव है, राइट? इसको थोड़ा हम ऐसे करते हैं, इसको इस साइड अगर तोड़े, इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, नाउ वी आर हैविंग अ इलेक्ट्रोफाइल, ये नेगेटिव जो चार्ज होगा इट विल अटैक ऑन दिस, तो फिर ये बन जाएगा। ओके, नाउ वन बाय वन हम थोड़ा देखते हैं। इन नाइट्रेशन व्हाट आर दीस reagents and all, तो in this हमने अभी देखा it's nothing, just addition of NO2 positive on benzene or aromatic compound, we'll get NO2. okay, so इसका जो सोर्स होता है वो होता है ये। okay, so this will be the solvent or reagent which we will use in nitration. फिर है सल्फोनेशन। in this again हमारे पास बेंजीन है and we will use concentrated H2SO4, तो इससे हमें SO3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। हाँ this is what we will get. ये जो हाइड्रोजन आ रहा है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ एसिडिक मीडियम, दिस इज एसिडिक मीडियम कंसंट्रेटेड H2SO4, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तो हमारा SO3 पॉजिटिव ही है, बट इन कंपाउंड वी आर गेटिंग SO3 हाइड्रोजन along with the hydrogen, this hydrogen is because of the acidic medium. ओके, अगर हम इसी को, ये जो प्रोडक्ट बना है, इसी में अगर हम डाइल्यूट H2SO4 डाल देना तो ये रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, लाइक वी विल अगेन गेट द बेंजीन। ओके, SO3H will leave the compound and we'll again get the benzene. Okay, so remember this. Then we have halogenation. In this our nucleophile is this, so for that हमारे पास एक सा हेलोजन होगा, like Br2, I2, Cl2 along with the Lewis. What is this? Lewis acid or Lewis base? what was the UP? AlCl3. It's Lewis acid. Yes, along with Lewis acid, then we will get our product. So confuse मत होना, AlCl3 के अलावा कोई अदर भी Lewis acid हो सकता है, we have discussed about it. Okay, AlCl3 है, okay, X2 और I2 along with AlCl3, Br2 along with AlCl3 और Br2 with SnCl4 or 2, ये सब we can use for halogenation. Okay, next we have Riddlecraft alkylation. In this it's nothing, एक बेंजीन होगा और एक कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा। अल्काइल ग्रुप मान लो it is attached with a halogen. So halogen will leave the compound, then we will get R positive, so फिर nucleophilic aromatic substitution reaction हो जाएगा and we'll get the product. Okay, acylation में okay, so Cl चला जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वी हैव स्टडीड दैट वेरी मच अनस्टेबल, तो इतना अनस्टेबल होता है कि उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है, एंड देन वी विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट. Okay, there is one thing, that rate of electrophilic substitution reaction is directly proportional to what do you think, it should be directly proportional to electron density or inversely? Substrate, हम substrate की बात कर रहे हैं. Okay, Directly proportional to it. yes, electron density. So कौन increase करता है? plus R group plus I group plus H group, इनके directly proportion होगा. For example, you have to tell rate of electrophilic substitution reaction. For example, we are having these, this and this. Okay, so CH3 will donate their electron
and NO2 is the electron withdrawing group. So this will be the trend. What do you think? What should be trend for this? Hmm. Wait. Yes. What should be the trend? Aniline will be more. Then Then CH3 negative. CH3 negative. What is this? Second वाला कौन सा? ये ओ है ऑक्सीजन है. अच्छा. भयंकर इतनी गंदी राइटिंग है. हम्म. अभी भी दिख नहीं रहा. आई गेस स्टक हो गया. ऑक्सीजन है. ओके. ओके. हाँ. तो फिर एनिलिन फिर OCH3 फिर CH3. यस. व्हाई? हम प्लस R उधर लाइक उधर लोन पेयर है तो यस. लोन पेयर है तो लोन पेयर रिंग के ऊपर जाएंगे. अब नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा इजीली दे देगा रिंग को. ओके. वेरी गुड. क्या होगा? पहले नाइट्रोजन वाला फिर हम ऑक्सीजन देन सल्फर. हम्म. सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन. तो सल्फर ज्यादा इजीली देगा ना अच्छा. इलेक्ट्रॉन्स. हाँ. वैसे ना होना ऐसे ही चाहिए. कंसेप्ट यही रखना, अप्रोच यही रखना. जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा इजीली रिंग को. अच्छे से इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा. बट इन दिस केस ओनली, यही एक ऐसा केस है वेयर देयर इज एक्सेप्शन. और आपने वही एक्सेप्शन बोला. तो ये ओके, ये एक्सेप्शन है. इसको एज अ नोज से याद रखना. ठीक है. देन वी आर हैविंग डायरेक्टिंग इफेक्ट. Okay, so we are having three type of aromatic compounds in which first जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जहाँ पे हेलोजन्स हो, एंड लास्टली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो. ओके, सो इफ वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, so it will activate the ring, will increase the rate of reaction, and it will be ortho para directing. ओके, अभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे होते हैं? तो इफ यू रिमेंबर, हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था. फॉर एग्जांपल OH. इन दैट केस एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, एक यहाँ पे आ रहा था. ओके, यहाँ इफ यू रिमेंबर एक ऑर्थो पे आ रहा था, एक पैरा पे आ रहा था नेगेटिव चार्ज. जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाया था हमने. यू रिमेंबर अंशुल, आर यू लिसनिंग? तो डू यू रिमेंबर कि हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था? ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज था, पैरा पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा था. अच्छा. हाँ. है ना? दिखाऊं फिर से या फिर है याद? नहीं याद है. ओके, सो अगर ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल ऑफ कोर्स प्रेफर करेगा ना जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा अच्छे से हो. तो दैट्स व्हाई इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इट विल डीएक्टिवेट
the ring and will decrease the rate of reaction and it is meta directing. क्यों? क्योंकि जब हमने इसका पढ़ा था तो ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। हम्म। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी एज कम्पेयर टू ऑर्थो पैरा, तो इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग। ओके, बट इन द केस ऑफ हैलोजेंस ये इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना, इट विल बी सिमिलर टू OH। व्हाई? बिकॉज़ दे आर आल्सो हैविंग लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स होंगे तो डीलोकलाइज करेंगे, तो विल बी सिमिलर। तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, बट ये डीएक्टिवेटिंग होंगे। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, तो ये थोड़ा डीएक्टिवेट करते हैं, बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो डोनेट करेगा। तो इन दिस केस ऑर्थो पैरा में भी पैरा जो है ज्यादा प्रिफर होगा। मेजर प्रोडक्ट जो होगा ना, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर प्रोडक्ट्स। क्योंकि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेंगे इसमें? इसमें पैरा बनेगा, इसमें पैरा बनेगा, इसमें भी पैरा बनेगा, इसमें भी पैरा बनेगा, इसमें पैरा बनेगा। O माइनस NH माइनस में मेटा होगा। ओके, CH3 में अगेन ऑर्थो बनेगा, बट इन लास्ट केस बिकॉज ऑफ रिपल्शन पैरा बनेगा। ओके, वहीं पे वी आर हैविंग NO2, COOH, yeah, we can write it as COOX. This X could be OH, OR, or halogen, anything. So in this case, okay. Okay, in the case of phenols, अच्छा ठीक है, there is one exception, we'll study about it. अगर हम फिनोल की नाइट्रेशन करवाए ना, तो पैरा ऑर्थो देसी प्रोडक्ट दोनों मिलेंगे, ऑर्थो भी मिलेगा, पैरा भी मिलेगा, बट मेजर विल बी बता दिया। लाइक नाउ वी कैन सी, मतलब यू कैन प्रिडिक्ट कि कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। बट इन दिस केस ये वाला मेजर होगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, देयर इज वन रिएक्शन जिसको हम कटरमैन वॉच रिएक्शन बोलते हैं। इन दिस वी आर हैविंग अ बेंजीन along with CO, HCl and AlCl3, and this gives us this benzaldehyde. Okay, so because of this ये हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, और फिर इलेक्ट्रोफाइल एट सब्स्टिट्यूट कर देता है। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियोफिलिक। सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलिफेटिक्स में देखी, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक्स में देखी, अभी न्यूक्लियोफाइल की एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे। ओके, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो इन दिस केस अभी जो ये वाली एरोमेटिक रिंग है, ऑफ कोर्स इट इज, आई टोल्ड यू दैट एक्स इज हैलोजन। ओके, सो हैलोजन क्या करेगा? डीएक्टिवेट करेगा। ओके, इट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, सो ये डीएक्टिवेट करेगा। सो ये क्या बना देगा? इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और हियर नाउ इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अभी न्यूक्लियोफाइल क्या करे? सब्स्टिट्यूट कर दे इस एक्स को, देन वी विल गेट न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ओके, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल if we add strong nucleophile, तो ये क्या करेगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, इसको हटा देगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगेन इट इज हैविंग लोन पेयर, तो इट विल अटैक, वी विल गेट द प्रोडक्ट। इसमें ये सीएल को हटाएगा, ओके, बिकॉज हेलोजेंस आर लिविंग, ओके। सो फॉर दिस यू शुड नो दैट हेलोजन हेलाइट्स होने चाहिए इसमें लिविंग ग्रुप में, और वी शुड हैव एन न्यूक्लियोफाइल इन विच ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सीएन हो। और अगर कार्बोनाइल ग्रुप NO2 ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे है, टू लिविंग ग्रुप, देन ऑल्सो बहुत अच्छे से ये वाली रिएक्शंस होंगी। ओके, सो इन दिस वी स्टडी अबाउट डायजोटाइजेशन रिएक्शन। Okay, so we have this in which we add NaNO2 along with HCl. तो what happens, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। Now this NO2 positive, we can write it as NO2 positive, it is a leaving group. Okay, तो इसके अंदर हम अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड करवा दें, तो इस पे अटैक करेगा और इसमें यहाँ से जाना पड़ेगा, then we will get a product. Okay, and if जो ये reagent है, if it is CuX and this X could be Br Cl I, then we call it as Sandmeyer reaction. Okay, the diazotization, this is diazotization reaction and it is property of only primary amines. Okay, so now we will study about addition reactions. So addition reaction would be, can involve addition of electrophile or nucleophile. Okay, so in this we have a Markovnev rule in which more electronegative element goes to more substituted site. Yeah. Okay, for example, if we are having this substrate and H2 over it, so in this we have OH minus along with hydrogen positive. So OH is more electronegative, then it will go to more substituted site, and hydrogen will go to less. This will be the okay. So इसमें हम we basically we talk about HBr, okay, in the absence of peroxide H2O2. Okay, so this Br is negative, H is positive, so Br will go to more electronegative. नेक्स्ट इज एंटी मार्कोनिव रूल। अपने नाम के जैसे ये भी मार्कोनिव रूल के एंटी है,
In this, more electronegative element goes to less substituted. Okay, in this case, in the presence of peroxide, HBr, the presence of H2O, okay. So now we will start with rearrangement reactions. So rearrangement reactions are generally observed in carbocations. So first of all, we will discuss about the intermediates. So we have discussed about carbocation, carboanion, radical. So this is now carbene, this is nitrene, and this is benzene. Actually, ये सब आपकी 11th में इतना नहीं होता है, but it is there in NEET syllabus. Okay, so that's why we are discussing them. So we know carbocation have 6 electrons, radical have 7, carbanion 8, and this carbene, it's a carbon attached to having 2 bonds along with 1 electron pair. Okay, this is what we call as carbene having 6 electrons along with 2 bonds. So it is electron deficient. So nitrines, in which it is attached to 1 bond and having along 6 electrons. And this is benzene. समझ में आ रहा है benzene? Like the way I have drawn it. Mhm. Like it's having 3 bonds. 1, 2, 3. Here. 1, 2, 3. This is benzene. And these are the intermediates. Okay? So rearrangements are shown by carbocations. And this is how a carbocation looks like. We have discussed in SN1 reaction that it is trigonal, planar, along with sp2 hybridization and also diamagnetic. Okay, electron deficient. So electron deficient है तो it is nucleophile. Electrophile. So इसका जो stability है that also we have discussed in GOC, that is directly proportional to plus m plus r plus h plus I. Right? So let's talk about a brief how carbocation get generate. If we have an alcohol and in the presence of acid, so acids जो होते हैं they give H plus ion. Okay, so this OH, this oxygen is having lone pairs, and this is the proton which is a electrophile. So what oxygen will do? This will attack this proton and will get converted into OH2 positive. Okay, now this OH2 positive is very much unstable, so it will leave the substrate and we'll get a carbocation.